Praise the Lord and welcome once again. Praise the Lord और एक बार फिर से आप सबों का इस सभा में स्वागत है। Good to be back again with you all. आप सबों के साथ इस रीति से वापस आना आनंद की बात है। Thank the Lord for every good thing He has done for us. प्रभु का हम धन्यवाद देते हर एक भलाइयों के लिए जो उसने हमारे प्रति किया है। Count your blessings. कहता है अपनी आशीषों को गिनो, Name them one by one. एक एक कर नाम बनाम, Surprise you what the Lord has done. और हमें आश्चर्य होगा कि परमेश्वर ने कितनी भलाई हमारे संग किया है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Shall we start with that chorus? क्यों ना उस कोरस से गाकर हम शुरू करेंगे। Love is the flag on the banner of my heart. झंडा है प्रेम का मेरे दिल में लहराता। Love is the flag on the castle of my heart, on the castle of my heart, on the castle of my heart. Love is the flag on the castle of my heart, and the King is in residence here. Let it fly in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Let it fly in the sky, let the whole world know that the King is in residence here. God is the flag on the castle of my heart, on the castle of my heart, on the castle of my heart. Love is the flag on the castle of my heart, and the King is in residence here. Let it fly in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Let it fly in the sky, let the whole world know that the King is in residence here. Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। This is also in Hindi. ये गीत हिंदी में भी है। Shall we sing it in Hindi now? हिंदी में अभी से गाएंगे। झंडा है प्रेम का। झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता। झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता। राजा यीशु मेरे दिल में है, उससे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, सारा जग जाने। उससे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने। राजा यीशु मेरे दिल में है। प्रेम का मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता। झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता। राजा यीशु मेरे दिल में है, उससे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, सारा जग जाने। उससे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने। राजा यीशु मेरे दिल में है। Hallelujah. प्रभु मुझको एक साज बना, साज स्तुति का। मैं अपने हाथों को उठाता, प्रभु मुझको एक साज बना, साज स्तुति का। मैं अपने हाथों को उठाता, प्रभु मुझको एक गीत बना, एक गीत स्तुति का। मैं अपने हाथों को उठाता,
an instrument of worship. I lift up my hands in your name. Lord, make me a love song for Jesus. I lift up my hands in your name. Lord, make me a love song for Jesus. I lift up my hands in your name. Lift up your holy hands, worship me one more time. life, Lord, be glorified, be glorified in my
life, Lord, be glorified today. And Lord, we praise you. Lord, we praise you. Lord, we praise you. We praise you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you. We love you, sing it again. Lord, we want to say, प्रभु हम कहना चाहते हैं we love you. कि बिना तेरे We want to say we love you, Lord. प्रभु हम आज सुबह तुझसे ये कहना चाहते कि हम तुझसे प्रेम करते हैं, Even though sometimes our love has been weak and frail, यद्यपि कई बार हमारा प्रेम कमजोर और दुर्बल होता है, yet, Lord, we know this, तो भी प्रभु इस बात को हम जानते हैं that you loved us first. कि तूने हमसे पहले प्यार किया है। Give us grace to love you more. हमें और अनुग्रह दे दे कि हम तुझसे और बढ़कर प्रेम कर सकें। Yes, Master. हाँ स्वामी, This is our prayer this morning. यही हमारी आज सुबह तुझसे प्रार्थना है। Draw us and we will come nearer to you. हमें अपने करीब ले आ, हम तेरे और पास आ जाएंगे। Fold us to your bosom. हमें अपने सीने से लगा ले प्रभु, Feel the throb of your heart. ताकि तेरे दिल की धड़कन हम समझ पाए। Forgive us our sins and iniquities. हमारे पापों को और हमारे अधर्मों को माफ कर दे प्रभु। Wash us in the blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के खून में हमें धो दे, Make us worthy हमें इस योग्य बना दे to stand before you. कि तेरे सामने हम खड़े हो पाए। Bless your people. अपने लोगों को तू आशीष देना, Bless your word to our hearts. अपने वचन को हमारे लिए आशीषमय कर। Give us utterance to speak your word. तेरे कलाम को बोलने की शक्ति दे, Give us listening ears. और हमें सुनने वाले कान दे।
bless us all. हम सबों को आशीष दे, Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते, Amen. आमेन। I'd like to share with you from Mark's Gospel, मैं मरकुस के सुसमाचार से आपके संग बांटना चाहता हूँ। 16th chapter, और मरकुस का 16 अध्याय, reading from verse 14 onwards. और उसकी 14 आयत से। Afterwards he appeared unto the 11 as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and the hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen. पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, sat on the right hand of God. प्रभु यीशु उनसे बात करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them हालेलुया, and confirming the word with signs following. Amen. आमेन। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। And he said unto them in 15th verse, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. 15 आयत में उसने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। 20th verse says, 20 आयत कहती है, They went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming his word with signs following. और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। This was the command of Jesus when he was being taken up into heaven. ये यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के पहले का आदेश हुक्म था। Before he could leave his disciples, इससे पहले कि वो अपने चेलों को छोड़कर जाए, he said to them these words, उसने उनसे ये वचन को कहा। the Great Commission. जो सबसे जो बड़ा कमीशन था, जो सबसे बड़ा कार्य यीशु मसीह ने उनको सौंपा था, The greatest command. जो सबसे बड़ा हुक्म उसने उन चेलों को देकर गया था, Go into all the world सारे जगत में तुम जाओ and preach. और प्रचार करो। Now you don't think, see, we are called to be witnesses. देखिए, Every one of us. हम सभी लोग यीशु मसीह के गवाह बनने के लिए बुलाए गए हैं। What he was saying is, वो क्या कह रहे थे? declare the good news. उस शुभ संदेश को लोगों को बताओ। I am depending on you, मैं तुम पर निर्भर हूं, not on the angels. स्वर्गदूतों पे नहीं, Upon you. तुम पर। You shall be my mouth. तुम मेरे मुंह होगे, You will be my legs and my hands. मेरे पांव मेरे हाथ होगे। You go and
declare the good news to people. तुम जाओ और लोगों को उस शुभ संदेश को सुनाओ। It is good that we pray. ये अच्छी बात है कि हम घर में प्रार्थना करते हैं। I will come to that point. मैं उस बिंदु में आऊंगा। Prayer is very important. प्रार्थना बहुत ही अहम है, But only prayer लेकिन केवल प्रार्थना may not give us the results which we need. शायद वो नतीजा हमको ना दे जो हमें चाहिए, Only preaching will not. और केवल प्रचार करना भी शायद वो नतीजा ना दे। But if we pray and preach, लेकिन यदि आप प्रार्थना करें और प्रचार करें, it will open a door. तब एक द्वार ऐसा खुलता है। Listen, सुनिए, devil will do everything possible for us not to preach the gospel. शैतान वो सब कुछ करने का प्रयास करेगा ताकि आप और मैं परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार ना करें। Jesus said, go and preach to every person. यीशु मसीह ने कहा, जाकर हर एक जाति के लोगों को प्रचार करो। There is no guarantee that everybody will accept. और ये इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि सब लोग उस बात को स्वीकार कर लेंगे, But it is for sure. लेकिन ये बात तय है Those who will accept, कि जो उसको ग्रहण करेंगे they will be saved. वे निश्चय उद्धार पाएंगे। Hallelujah. आमेन। The devil knows और शैतान इस बात को बखूबी जानता when है the gospel is preached, कि जब कहीं भी जहां पर भी सुसमाचार का प्रचार होता है, divine power of God is released, वहां पर परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य वहां पर काम करने लगती है, which can bring salvation to human being. जो मानव प्राणी के अंदर अनंत जीवन उद्धार को ला सकता है। So he does everything in his power इसलिए शैतान के बस में जितनी बात है वो सब करता है to stop the preaching of the word. कि वचन के प्रचार को कैसे भी वो रोके। If he cannot do that, और यदि वो करने में वो सफल नहीं हो पाया, he will divert the preacher for preaching the true gospel. तो वो प्रचारक को भटकाएगा कि वो दूसरा कुछ बोले, सुसमाचार को ना बोले। Preaching without repentance, बिना पश्चाताप वाला प्रचार करे, preaching without a cross, बिना क्रूस का प्रचार कर दे, preaching without telling people their sin. बिना लोगों को उनके पापों के बारे में बताए प्रचार कर दे। Everybody will like a very sugar-coated gospel. और लोगों को भी ऐसा मीठा मीठा सुसमाचार सुनने में बहुत आनंद आता है। What happens? लेकिन क्या होता है? If you read in Romans 1st chapter 16th verse, लेकिन यदि रोमियो 1 का यदि 16 आयत को हम पढ़ें, Paul says, वहां पर पौलुस कहता है, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? आमेन। Amen. I am not ashamed of the gospel मैं सुसमाचार से नहीं लजाता of Jesus Christ. यीशु मसीह के सुसमाचार से। You know why? आप जानते क्यों? It is the power of God to salvation. क्योंकि वो उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। Amen. आमेन। Preaching the gospel, सुसमाचार का प्रचार करना meaning releasing the power of God. मतलब परमेश्वर की सामर्थ को लोगों पर प्रकट कर देना। Preaching the gospel, सुसमाचार प्रचार का अर्थ क्या है? the gospel is the power of God. वो सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। And when we proclaim the gospel, और जैसे वो सुसमाचार हम बोलते हैं, the power of God is released. परमेश्वर की सामर्थ वहां पर निकल जाती है। That is why people are saved during convention time. और इसीलिए कन्वेंशन के दौरान क्यों लोग उद्धार पाते हैं? What does the power of God do? परमेश्वर की सामर्थ क्या करती है प्रियो? It saves the sinner, वो एक पापी को बचा लेती है, heals the sick, बीमार को चंगा कर देती है, forgives the sinner, sin, पापियों को माफ करती है, set them free from the bondage of the enemy. दुश्मन के बंधनों से, बेड़ियों से उनको आजाद कर देती है। God has not entrusted the preaching of the gospel to angels. परमेश्वर ने इस शुभ संदेश का प्रचार का काम स्वर्गदूतों को नहीं दिया। They are messengers of God, वे परमेश्वर के संदेशवाहक हैं, but they have no experience of salvation what we have. लेकिन उन स्वर्गदूतों के पास में वो अनुभव नहीं है उद्धार का जो आप और मेरे पास है। Like the blind man said like this, जैसे कि अंधा आदमी ने बाद में ऐसा बोला, when they questioned him whether you were born blind or you are the same man or somebody else. जब उससे लोगों ने पूछा क्या तू वही आदमी है जो बचपन से अंधा था, क्या जो यहाँ अंधा था वो तू ही है? He said like this, उसने ऐसा उत्तर दिया, one thing I know, एक बात मैं जानता हूं, I was blind, मैं अंधा था now I see. और अब
मैं देख सकता हूं। Hallelujah. हालेलुया। That is the message. यही संदेश है। He might have never dreamt that this message will be preached all over the world. उसने कल्पना में भी उस अंधे आदमी ने जो चंगा हो गया नहीं सोचा होगा कि आज तक उस आदमी का नाम लेके प्रचार किया जाएगा। And they will say like this. और हम ऐसा बोलेंगे, I was blind but now I see. कि मैं कभी अंधा था लेकिन अब मैं देख सकता हूं। Even the writer of Amazing Grace, यहां तक कि उस गीत का लेखक जो अमेजिंग ग्रेस को लिखा, he also says, वो भी कहता है Hallelujah. हालेलुया। Listen friends, सुनिए दोस्तों, if we keep quiet, यदि मैं और आप शांत रहें, what we are doing is, हम क्या कर रहे we हैं? are not giving an opportunity for sinners to be saved. हम पापियों को उद्धार पाने का अवसर नहीं दे रहे। Angels are not entrusted to preach the gospel. स्वर्गदूत इस बात में रुचि उनको नहीं है शुभ संदेश को प्रचार करने का। They have not been given. उनको एक काम भी नहीं दिया गया है। They are only entrusted in bringing a message or defending and what all other ministries. उनको परमेश्वर से संदेश को लाने के लिए या लोगों की रक्षा करने का काम दिया गया Only है। a human being, a redeemed man can preach the gospel. लेकिन केवल एक मानव प्राणी जो अपने पाप से आजाद हुआ है वही शुभ संदेश प्रचार कर सकता है। When we are going to sing a song in heaven, the angels cannot sing that. जब हम स्वर्ग में पहुंचकर उस गीत को गाएंगे तो स्वर्गदूत भी उस गीत को नहीं गा सकते। We are redeemed by the blood of the Lamb. मैं मेमने के लहू से बचा हूं। Worthy is the Lamb योग्य है वो मेमना who redeemed us. जिसने हमको छुटकारा दिया है। At that time, the angels fold their wings. उस समय स्वर्गदूत भी अपने पंखों को दबा लेंगे, For the angels cannot sing the song with the redeemed sings. क्योंकि स्वर्गदूत भी उस Hallelujah. गीत को नहीं गा सकते जो छुटकारा पाए हुए लोग गा सकते हैं। Amen. आमेन। God has entrusted this preaching to you and me. परमेश्वर आपसे और मुझसे रुचि रखता है कि हम इस समाचार को प्रचार करें। Without personal experience with Christ, our preaching will be in vain. यीशु मसीह के साथ बिना निजी अनुभव के हमारा सारा प्रचार व्यर्थ होगा। Just because you got a good brain सिर्फ इसीलिए कि आपका बुद्धि तेज है and you can know the scriptures by heart. और इसलिए कि आप वचन को अच्छी तरह से याद करके बोल सकते You हैं। may know the scripture, but we may not know Jesus as our Savior. हो सकता है आप शास्त्र को जानते हो लेकिन उद्धारकर्ता को नहीं। संभव है। First thing, पहला we काम, need to be saved and born again. हमें उद्धार पाकर नया जन्म पाना पहला कदम है। Paul writing to Philippians in 1 chapter 15th verse says, पौलुस फिलिपियों की कलीसिया में 1 अध्याय के 15 आयत में लिखते हुए बोलता है, some indeed preach Christ even of envy and strife, and some also of goodwill. कुछ लोग कई तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के उत्तर देने को ठहराया को प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं। 16th verse, 16 आयत में लिखा है, the one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds. वो मेरी हिंदी में 17 में लिखा है कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। But others preach in love, knowing that I am set for the defense of the gospel. लेकिन 16 में लिखा, कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं प्रेम से प्रचार करते हैं। What then, notwithstanding anyway, whether by pretense or in truth, Christ is preached, Hallelujah. and I therein do rejoice and will rejoice. तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। What does the word preach means? प्रचार, कथा सुनाना, वचन सुनाने का अर्थ क्या है? To proclaim, घोषणा करना, to deliver a message, एक संदेश लोगों के पास लेकर आना, to speak forth your belief and truth, आपके विश्वास और आपकी सच्चाई को प्रचार करना, to audibly teach or और proclaim, घोषणा करना ऐसे जो लोगों को सुनाई दे, to earnestly advocate a belief. गंभीरता के साथ में एक विश्वास को वहां पर लोगों के सामने प्रकट करना। Are you here? क्या आप सुन रहे हैं? We have something in our heart. हमारे हृदय के अंदर कुछ है, Share it. उसको लोगों के सामने खोल कर बताना है। To whom did Jesus say to preach? यीशु मसीह ने किनको बोला प्रचार करने के लिए? To his disciples. अपने चेलों से। First thing, become a disciple of Christ. पहला काम है यीशु मसीह के चेले बन जाएं। Amen. आमेन। Be disciplined. अनुशासित हो जाएं। And then और तब
We are called to preach. हम प्रचार करने के लिए बुलाए गए हैं। What to preach? क्या प्रचार करें? The gospel. सुसमाचार। Whom to preach? किनको प्रचार करना है? Everybody is. सारे जगत के लोगों को। It's a big stage. और एक बहुत बड़ा मंच है वो। Amen. आमेन। Are you here? Amen. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Why to preach? प्रचार क्यों करना है? Because we are commissioned to preach the gospel. क्योंकि हमको कार्यभार सौंपा गया है प्रचार करने का। Amen. आमेन। Where to preach? और प्रचार किधर करना है? The whole world. सारी दुनिया में कहीं पर भी। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। John the Baptist came. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आया, In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदा के नगरों में आया प्रचार करते हुए, saying, "Repent, for the kingdom of God is at hand." और ये पुकारते हुए घोषणा करते हुए, पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। Jesus began his ministry by saying, यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई आरंभ की ये बोलते हुए, from that time Jesus began to preach and say, "Repent, for the kingdom of God is at hand." और कहा पश्चाताप करो, मन फिराओ, और परमेश्वर का राज निकट है। He went about all Galilee, teaching in the synagogues, preaching the gospel of the kingdom. सारे गलील में, आराधनालय में, मंदिर में वो सुसमाचार को प्रचार करते हुए फिरा, Healing all manner of sickness and all manner of disease. हर तरह तरह की बीमारी, तरह तरह के रोग को चंगा करता हुआ चला। Disciples. चेले, And Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, Matthew 10:7, मत्ती 10 के 27 में, as you go, जैसे तुम जाओ, preach saying, प्रचार करते हुए कहो the kingdom of God is come. कि परमेश्वर का राज आ गया है। 10:27, और 10 के 27 में लिखा है, what I tell you in darkness, जो तुमसे मैं अंधियारे में कहता हूँ, speak in the light. उसे तुम उजियाले में कहो। What you hear in the ear, जो कानों कान सुनते हो, preach upon the housetop. उसे छतों पर से प्रचार करो। They went and preached the kingdom of God. और वे चले गए और राज्य का प्रचार करने लगे। You know, God told Jonah, आप जानते परमेश्वर ने योना नबी से कहा, what I tell you, you preach. जो मैं तुझसे कहूं तू प्रचार कर। Yet 40 days, केवल 40 दिन बचे हैं Nineveh will be destroyed. और निनवे नगर नाश हो जाएगा। That was only the message. केवल इतना ही संदेश प्रभु ने दिया था योना को। And he preached that message for 3 days. और वो 3 दिन नगर घूम घूम कर केवल यही बोलता रहा। One fellow was following D.L. Moody. एक आदमी पास्टर डीएल मूडी के पीछे पीछे उनकी सभाओं में जाता And था, every time he went, he preached the same sermon. और हर जिस सभा में भी, जिस नगर में भी जाए, डीएल मूडी वही प्रचार You करते must थे be born again. और कहते थे तुम्हें नया जन्म पाना जरूरी है। So he said, I will go and ask him. तो उन्होंने एक दिन उस आदमी ने तय किया, मैं जाकर डीएल मूडी से बात करूंगा। So he came and told him, sir, वे आए और बोले, सर I've been following you. मैं आपकी सभाओं में कई जगह में आपके पीछे पीछे आ रहा हूं, You are saying the same thing. You must be born again. लेकिन जहां पे भी सुनता हूं मैं वही संदेश सुनता हूं, आप हर बार यही बोलते हो कि तुम्हें नए जन्म पाना जरूरी है। So D.L. Moody turned to him, डीएल मूडी उस आदमी की तरफ मुड़े और बोले, you must be born again. तुम्हें नया जन्म पाना जरूरी है भाई। Hallelujah. Amen. If he was born again, यदि वो नया जन्म पाया हुआ इंसान होता he won't be going following him fault finding. तो वो उनकी गलतियों को ढूंढने के लिए उनके पीछे पीछे नहीं घूमता। The disciples preached, the scenario changed after Acts of the Apostle. और सारा परिदृश्य बदल गया प्रेरितों के काम की किताब के समय। Now they preached repentance. अब ये लोग प्रचार करने लगे, मन फिराओ। They went everywhere, preached the word. हर जगह जाकर यीशु मसीह के वचन को बताने लगे। They went everywhere and preached Jesus is Lord. और जहां जहां गए वो बोलने लगे, यीशु मसीह ही वो प्रभु है। They preached the gospel. वे सुसमाचार को लोगों को बताए। They preached the cross of Jesus. यीशु मसीह के क्रूस के बारे में लोगों को बताने लग गए। Hallelujah. हालेलुया। Some people think the cross is too old now. कुछ लोगों को लगता है क्रूस बहुत पुराना हो गया The है। preaching of the cross ओ, लेकिन वही क्रूस का प्रचार it saved many souls and many good sermons. वो बहुत अच्छे अच्छे संदेशों से बढ़कर वो परमेश्वर यीशु का क्रूस लोगों को बचाता है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, if I be lifted up, I will draw all men to me. यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं ऊंचे पर उठाया जाऊं तो मैं लोगों को अपने पास खींचूंगा। Paul writes and says, पौलुस लिखते बोलता this is है, the gospel of God, ये परमेश्वर का सुसमाचार है। gospel of Jesus Christ. यीशु मसीह का सुसमाचार है। This is my gospel. ये मेरा सुसमाचार है। Hallelujah. हालेलुया। Declare.
उसकी घोषणा करो। You and I आप और मैं declare the gospel. यीशु मसीह के शुभ संदेश को लोगों को बताएं। If all of us will tell somebody, यदि हम में यहाँ बैठे एक एक जन लोगों को यदि बताएं, this place will be, we'll have to go outside. हमें इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा। Don't hold your peace. अपनी शांति को, अपने शब्दों को रोक के मत रख। Don't think preaching is eloquence. ये मत सोचना कि प्रचार करने का मतलब अच्छे से शब्दों को मिलाकर बोलना है। If the trumpet gives an uncertain sound, who will hear? यदि तुरही का स्वर अच्छा ना हो तो कौन सुनेगा? Tell them, उनको बताओ, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। He came to die for sinners, वो पापियों के लिए अपनी जान देने आया, shed his blood, अपने लहू को बहाया, was buried. यीशु मसीह गाड़ा गया, Third day he rose again. लेकिन गाड़ाने के तीसरे दिन के बाद वो जी उठा। Now he sits at the right hand of the Father. और आज वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है। All rule and authority is under his feet. सारा साम्राज्य, हुकूमत उसके कदमों के नीचे है। The gospel यीशु मसीह का समाचार is the power of God. परमेश्वर की वो सामर्थ है, वो सुसमाचार। Tell your servant, अपने घर में काम करने वाले नौकरों को बताइए, tell your boss, अपने बॉस को भी बताइए, tell your students, अपने विद्यार्थियों को बताइए, tell everybody. हर जन को बताइए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Before we go in prayer, प्रार्थना में जाने से पहले I'll tell you one story. मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। One night, एक रात्रि को one preacher was told, get up and go ring the bell of your neighbor's house. एक प्रचारक को Tell them of my love. मध्य रात्रि को परमेश्वर ने जगा दिया और उसको कहा कि तेरे घर के रोड के उस पार जो घर है वहां के लोगों को जा और तू उनको यीशु मसीह का शुभ संदेश सुना। That man said, that man is a criminal. और इस प्रचारक ने मन में सोचा कि वो आदमी तो एक अपराधी आदमी है, His wall is decorated with guns and swords and all kinds of weaponry. और वो आदमी का घर में सजावट अलग अलग तरह के बंदूकों को दीवार में सजा के रखा है। Nobody dares to enter his house. कोई भी आदमी उसके घर में प्रवेश करने का हिम्मत नहीं कर सकता। God said, go. लेकिन परमेश्वर ने दृढ़ता से इस प्रचारक से कहा, तुम अभी उठो और जाओ। He was hesitant. वो प्रचारक कुछ हिचकिचाने लगा, Then anyway he went. लेकिन वो तैयार हुआ, निकला बाहर। 1 o'clock. रात्रि 1 बजे As he pressed the bell, जैसे उसने उस घर के दरवाजे के बाहर घंटी को दबाया, immediately door opened. तुरंत दरवाजा खुला। Listen friends, सुनिए दोस्तों, that part of night nobody opens doors so quickly. रात्रि के उस समय कोई भी दरवाजे को इतनी जल्द नहीं खोलता है। That man was standing there. वो आदमी वहां पर जगह था, बैठ खड़ा था। He says, yes. उसने पूछा, क्या बात है? He says, the Lord sent me to tell you something. इस प्रचारक ने कहा, परमेश्वर ने मेरे को भेजा है तुमको कुछ बताने के लिए। He said, come, sit down. अंदर आओ, बैठो। He told them the love of God. उस प्रचारक ने यीशु मसीह के प्रेम को उस व्यक्ति के साथ बांटा। And the husband and wife, both of them gave their life to Jesus Christ. पति पत्नी जो वहीं, वो दोनों, उन्होंने वहीं पर अपना जीवन यीशु मसीह को स्वीकार करके दे दिया। And you know what they said? और आप जानते उसके बाद उन्होंने क्या कहा? If you were 2 minutes late, यदि आप आने में 2 मिनट और देर करते, we were going to commit suicide. तो हम दोनों आज अपने जीवन को अंत करने वाले थे। He had the guns loaded in a hand. हाथ में उनके बंदूक गोलियों के साथ तैयार थी। Just then the bell rang. तभी घंटी बज गया। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Don't think they will not accept. ये ना सोचना कि वे लोग तुम्हारे सुसमाचार को ग्रहण नहीं करेंगे। Don't look at the outside with all these things. Don't think they will not. There is मनुष्य something in man's heart. मनुष्य का बाहरी चेहरा, उसका रूप, उसका वस्त्र, हाव भाव देखकर मत डर। मनुष्य के अंदर कुछ है। Down in the human heart. मनुष्य के हृदय की गहराई, Crushed by the tempter. परीक्षा लेने वाले ने उसको कुचल के रखा है। Feelings lie buried that grace can restore. ऐसे भावनाएं जो दबी पड़ी हैं, जिसको केवल अनुग्रह ही जगा सकता है। Touched by a loving heart. एक प्रेमी हृदय जब उसको आकर छूता है, Wakened by kindness. दया के साथ में जब जगाया जाता है, Cords that were broken.
वो तार जो टूट चुके थे will vibrate once more. एक बार फिर से उसमें सुरीली धुन निकलने लगे। Rescue the perishing. नाश होने वालों को बचाओ, Care for the dying. मरने वालों की फिक्र करो, Snatch them in pity उनको दया के साथ खींचो, from sin and the grave. पाप से खींचो, कब्र से खींच निकालो। Weep over the erring one. जो गलती कर में गिर रहा है उसके लिए आंसू बहाओ। Lift up the fallen. जो गिर गया पाप में उसको सहारा दे के खड़ा करो, Jesus is merciful. क्योंकि यीशु मसीह दयालु है। Jesus will save. यीशु मसीह ही बचाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You and I, आप पर मैं, God is depending on you. परमेश्वर आपके ऊपर निर्भर है। My daughter, my son मेरा बेटा, मेरी बेटी will tell somebody. जाएगी और किसी को बताएगी, Salvation will come. उद्धार इस जगत में आएगा। Let's pray. ओ हम प्रार्थना करें, Salvation will come in this land of India. ओ प्रभु भारत देश के अंदर तेरे उद्धार आने पाए। Korabashi babari tiribi. Amen. आमीन। Thank you all for your prayers for us. आपकी प्रार्थनाएं जो आप हमारे लिए करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। We thank you for supporting us also. और आर्थिक तौर से Financially. हमारी सहयोग करने के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। God bless you all. प्रभु आप सबों को उसके लिए आशीष दे। We are online because the churches are closed. और चूंकि कलीसियाएं अभी बंद हैं, हम ऑनलाइन ही इस प्रकार से आपसे रूबरू हो रहे हैं। We are praying that it will open soon. और यही हमारी प्रार्थना है कि प्रभु का भवन फिर से एक बार खुलने पाए, We can gather together and worship Him. ताकि लोग एकत्रित होकर उसकी आराधना मिलकर कर सके। So we sing a chorus, so we put our offering. इस समय हम एक कोरस को गा लेंगे और आप अपनी भेंटों को अपने स्थान में एकत्रित कर सकते हैं। There really ought to be a sigh upon my heart. Don't judge yet, there's an unfinished part. I will be perfect just according to His plan, fashioned by the Master's loving hand. He's still working on me to make me what I ought to be. It took Him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient He must be. He's still working on me. Shall we pray for the offering? आइए भेंट के लिए हम प्रार्थना करें। Lord, we pray that you bless those who have given to your kingdom. प्रभु हम प्रार्थना करते तू अपने लोगों को आशीष दे जिन्होंने तेरे राज के प्रति दिया है। Those who could not give, bless them too. प्रभु जो देने में असमर्थ थे उन्हें भी आशीष देना। We all together might love you and serve you all the days of our life. तेरे सारे लोग हम मिलकर जीवन भर तेरी सेवा कर सके। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. 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 God bless you all.